Hello, good morning. How was your, very clearly? Yes, sir. Okay, okay. तो हमने लास्ट लेक्चर में थर्ड मॉड्यूल स्टार्ट किया था जिसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एंड some of the types, some of the characteristics of derivatives and why people trade in derivatives, or we can say what are the participants of derivatives, what are the participants in derivative market. सो hedgers, speculators या जो अलग अलग मोटिव्स होते हैं वो हमने डिस्कस किए. So today we will start with the types. We were discussing about types of derivatives. So one first type we talked about forward contracts, and we also said that forward contracts are very similar to future contracts. And if you look at the chronological order, then firstly there were forward contracts, and then came the second type of contract, which are futures contract. Okay, so so far we are clear. Now I said forward contracts are relatively riskier. There is a counterparty risk involved whenever we are trading in forward contracts because there is no intermediary. Any two private parties can enter into contract. Okay, जैसे कि a farmer is entering into a contract with trader and so on. So it is a one-to-one kind of contract and customizable kind of contract, and hence there is no third party involved. There is a direct connection between the two participants in the contract. But when it comes to futures contract, it is not the same. Like future contracts are slightly different from forward contract because they are the standardized contracts, and which are executed on exchanges, which are listed on exchanges. So maybe if you are dealing with commodity exchanges, then you'll be trading on a multi commodity exchange, MCX जिसको बोला जाता है, commodity contracts के लिए. Then if you are dealing with energy related contracts, let's say I want to buy electricity, okay, or in bulk and at some future date, then I can enter into a future contract to buy electricity on the another exchange which is known as Indian Energy Exchange, and so on. So whenever you are dealing with various types of commodities, and whenever you are entering into such type of contracts through exchanges, when you are buying contracts which are listed on stock exchanges, those are known as futures contract. Okay, so forward contract you will not find on exchanges. Futures contract are listed on exchanges, and they are standardized one. Why are they standardized? Because that way you also have a liquidity associated with those contracts. Now, how come contracts become liquid? The thing is, suppose the example which I discussed last time. It was about a specific car, a customized car, and this car was only required by one party, one buyer, and only the two parties to the contract were somehow associated with this deal. Nobody else is interested to buy this particular car. All right, so it is a forward contract, and hence this cannot be liquidated. You cannot trade it with somebody else. So suppose buyer's requirement changed in the due course, the buyer's requirement changed. So can we can buyer sell this contract to somebody? The answer is no. When it comes to forward contract, the parties to the contract are supposed to fulfill their obligations. Okay, so that is the case when we are dealing with forward contracts. But when it comes to futures contract, uh, because the product is standard one and it is demanded by many buyers and it is sold by many sellers, you can as well sell those contracts in between. So there is no reason why there is no need to take the physical delivery of that particular commodity. So let's say we are talking about a specific type of rice. Let's say बासमती राइस का कोई एक स्पेसिफिक टाइप है, उसके हम लोग बात करें, उसमें हम ट्रेड कर रहे हैं. So we know there are many buyers and sellers who wish to trade in this particular commodity. So automatically this becomes a standard commodity. So
also specifying the type of product, quality of the product, any specific characteristics associated uh, with those commodities are also listed or also entered when you are drafting a contract. You have also specified that particular thing. So that way, it becomes a standard commodity. Okay. So if you look at the various futures contract which are available, we will see that there is a specifics which are given. Specific It is specifically said what type of commodity are we dealing with. Are there any variants of those commodities? If yes, then that is also mentioned. What is the variety of this particular commodity? So everything is mentioned. So that way, buyer and seller are sure what are they exactly buying. So this gives them additional liquidity. So if there is a third buyer who wish to buy a similar type of commodity, then they can easily buy that contract instead of entering into a fresh contract with a seller. You can simply buy the contract which is traded on the exchange. You don't have to necessarily seek the seller who produces this type of a commodity and then enter into a contract with that person. You don't have to incur that search. Okay, so this is the beauty of this particular contract, futures contract. Then what else? Another advantage is, as I said, you don't have to search the counterparty. You don't have to search for that counterparty. It might so happen that you don't even know the seller. Okay, you don't even know the seller with whom you are trading. So जब आपने contract purchase किया, futures contract जब आपने purchase किया, तब आपने, क्योंकि वो stock exchange पे listed था, तो आपको डायरेक्टली वो सेलर के साथ डील करने की जरूरत नहीं है. उसको उस मतलब वो नोन होने की जरूरत नहीं है. यू कैन ट्रेड विद अननोन पार्टी ऑल्सो, प्रोवाइडेड द पार्टी इज ऑनरिंग देयर ऑब्लिगेशन. You are good to go. Even if they don't honor, still stock exchange will take the matters in their hand, and you are not at the mercy of that particular seller. So if you are losing out in the process, or if the counterparty is not fulfilling their obligations, it is a stock exchange responsibility to take the actions. Okay, so there is no counterparty risk involved here. Whereas फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, अगर वो सेलर भाग गया तो हमें वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा 3 महीने के बाद, या जो भी मैच्योरिटी पीरियड है उस टाइम पे हमें वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. राइट, सो वी आर एट द लॉस. बट that's not the case when it comes to futures contract, because यहाँ पे risk काउंटर पार्टी रिस्क होता ही नहीं है, बिकॉज यू डोंट हैव टू नो द थर्ड पार्टी, मतलब द काउंटर पार्टी, द सेलर ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटी या बायर ऑफ द कमोडिटी. मतलब दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेनिफिशियल है. वी आर नॉट कंसर्न विद who is purchasing from us, what is the credit history of that particular person, credibility of that particular person. We are not concerned about that. What we are really concerned about is we should be able to sell that particular commodity, ठीक है, एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड. तो उससे हमें कंसर्न है, और वो हमें स्टॉक एक्सचेंज इंश्योर कर रहे हैं कि द कॉन्ट्रैक्ट विच यू हैव एंटर्ड इन विल गेट एग्जीक्यूटेड एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड. ठीक है, सो यहाँ पे आपको ज्यादा कंसर्न होने की जरूरत नहीं है. तो ये है. और another major difference between the two contracts is that futures contract are settled on a daily basis. Okay? On a daily basis, the settlement happens. So, for example, let me give a very simple example. I had entered into a futures contract to buy a commodity which is worth 100 rupees. Okay? 100 rupees का प्रोडक्ट परचेस करने के लिए मैंने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बनाया है. ठीक है, अभी उसका प्राइस भी 100 रुपीज मैंने रखा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी 100 रुपीज है. ठीक है, तो ये 3 महीने के बाद मुझे परचेस करना है 100 रुपीज. बट इन बिटवीन क्या होता है, बिकॉज ऑफ सम रीजंस द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी चेंजेस. लेट्स से उसकी प्राइस 100 से अभी 90 रुपीज हो गई, 90 रुपीज हो गई. तो इसका मतलब है आज बिकॉज ऑफ सम ग्लोबल इशू the price of the commodity declined to, let's say, from 100 to 90. तो 10 रुपए अभी मेरा बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? व्हाट डू यू थिंक? It's bad. Bad thing, isn't it? Because you agreed to buy this commodity at 100 rupees after 3 months, which is now available at 90 rupees. बराबर ना? मतलब मुझे
मैंने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 100 रुपए का बनाया है, जबकि वो असेट का करंट प्राइस इज 90 रुपीज। तो इसका मतलब है आज के डेट में अगर इवेल्युएट किया जाए प्रॉफिट एंड लॉस को, तो मुझे 10 रुपए का लॉस हो रहा है, बिकॉज मैं एग्री किया है कि मैं 100 रुपए में खरीदूंगा, जबकि उसकी मार्केट प्राइस 90 रुपीज है। तो ये आज के दिन का मेरा लॉस कितना है? 10 रुपीज, है ना? 10 रुपीज, बिकॉज 100 माइनस 90 इज 10 रुपीज। तो 10 रुपीज का लॉस है आज। तो ये जो मेरा इसको MTM लॉस, हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे आगे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में। ये MTM लॉस मेरा जो है वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट हो गया, क्योंकि जो प्रोडक्ट आज 90 रुपीज का है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो 100 रुपए है। इसका मतलब है 10 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है एज अ सेलर, यू आर रिसीविंग 10 रुपीज एक्स्ट्रा। सो दिस मीन्स सेलर इज गेनिंग इन द प्रोसेस। सो ये डेली बेसिस पे सेटलमेंट होगा। तो it doesn't matter who is ultimately fulfilling the obligations of buyers and sellers. ये कॉन्ट्रैक्ट इन बिटवीन बहुत सारे बार ट्रेड हो सकता है। तो इनिशियली जब ए और बी, लेट्स से सेलर वाज ए एंड बायर वाज बी, ओके, तो इन दोनों के आपस में ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब हुआ था, तय हुआ था एक्सचेंज के थ्रू, राइट? बट ये बी ने ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत बार सेल किया। उसने सी को सेल किया, डी को सेल किया, सी ने डी को सेल किया, डी ने ई को सेल किया, एंड सो ऑन। ऐसा कब तक चला गया? चलता रहा मे बी जेड जी लास्ट अल्फाबेट तक ये चला। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ट्रेडेड मल्टीपल टाइम्स बिफोर द मैच्योरिटी। सो फाइनली हु इज होल्डिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट? right to buy, yeah, obligation to buy, I would say Z is having the right or obligation to buy this particular commodity at a pre-specified price. So even though initially the contract was we can say it was formalized between A and B, ultimately who is carrying out the actual transaction? It is A and Z. Okay, in between वाले जो parties है उनको भी इस कॉन्ट्रैक्ट से कुछ लेना देना नहीं है। जब उन्होंने उसको बेच दिया तो उनकी ऑब्लिगेशन भी खत्म हो गई वहां पे। So whoever is the torch bearer, that person will be responsible for fulfilling the obligations. Okay, so buyer, किसी ने अगर लॉन्ग पोजीशन ली है उस कॉन्ट्रैक्ट में तो उसको बाय करना पड़ेगा एट अ प्री स्पेसिफाइड रेट। तो 100 रुपए जो भी कमोडिटी का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, उस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में उसको परचेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट दिन ऐसा होता है कि सडनली देयर इज अ डिमांड फॉर दिस कमोडिटी। तो जो 90 रुपीज, 100 का जो 90 हुआ था प्राइस, वो बढ़ के अभी 110 हो गया। तो दूसरे दिन क्या हो जाएगा? बायर इज इन प्रॉफिट नाउ बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 100 एंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ द कमोडिटी टुडे इज 110। ठीक है, तो डिफरेंस कितने का है? 10 रुपए का। अभी सेलर को वापस देना पड़ेगा बायर को 10 रुपए। ठीक है, सो दिस इज हाउ द ट्रांजैक्शंस वर्क, राइट? तो मतलब ये ऑन अ डेली बेसिस सेटलमेंट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे काउंटर पार्टी का कोई रिस्क ही नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा? जिस दिन का जितना भी जिसका लॉस रहेगा, बायर हो या सेलर हो, जितना भी उनका लॉस या प्रॉफिट रहेगा वो उनके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा या उससे डेबिट किया जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट है क्रेडिट किया, लॉस है तो डेबिट किया जाएगा। सो दिस वे देयर इज नो काउंटर पार्टी रिस्क. The settlement is happening like it is happening on a daily basis. Okay, so ये हो गया आपका futures contract. I hope the difference between forward and future contract is clear with everyone. Yes, sir. Okay, और भी है उसमें, और भी कुछ details है, we will learn about them in the subsequent lectures. फिलहाल के लिए ये है एक बेसिक टाइप का डेरिवेटिव। फिर थर्ड टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको बोला जाता है ऑप्शंस। ठीक है, और जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे ऑप्शन होता है। मतलब यू डोंट हैव ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म सर्टन थिंग, बट रादर यू हैव ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे दोनों को ऑप्शन नहीं दिया जा सकता है, जैसे कि बायर को भी ऑप्शन दिया जा रहा है और सेलर को भी ऑप्शन दिया जाए, ऐसा नहीं कर सकते, अदरवाइज द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो इधर one of the party gets the option, or we can say the right. One of the party is getting right and the other party is obliged to fulfill their obligations, और मतलब obliged to do certain things. जैसे कि यहाँ पे ऑप्शंस में दो टाइप के ऑप्शंस होते हैं। एक होता है कॉल ऑप्शन और दूसरा होता है पुट ऑप्शन। ठीक है, कॉल ऑप्शन क्या होता है? राइट टू बाय।
राइट टू बाय. तो सपोज आई डोंट सी, जब मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, I had to necessarily take the delivery. I will have to necessarily buy that particular commodity. If seller is willing to sell, I will have to buy. सेलर अगर म्यूचुअली हम लोग अगर डिसाइड कर रहे हैं कि ठीक है हम लोग फिजिकल डिलीवरी नहीं कर ले रहे, जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस है उसको ही सेटल करते हैं, लेट्स नॉट गेट इनटू द फिजिकल डिलीवरी. ठीक है, अगर ऐसा है, वाटर के रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं इन डेवलप कंट्रीज, यू फाइंड वाटर रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल्सो. मतलब आप सोच सकते हो उतने कमोडिटीज में आपको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, तो सपोज डिलीवरिंग फिजिकली डिलीवरिंग वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस विल बी अ वेरी कॉस्टली प्रपोजिशन. सो इंस्टेड what we can do, we as a buyer and seller can decide is, instead of taking the physical delivery, let's just settle it for cash. Okay, कैश सेटलमेंट इसको बोला जाता है. तो मतलब मैंने, हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या था, लेट्स से 100 रुपए, और आज वाटर की प्राइस कितनी है, लेट्स से 200 रुपीज. तो इसका मतलब है द प्राइस हैज अप्रिशिएटेड बाय 100 रुपीज, या 100% से प्राइस अप्रिशिएट हुआ है. तो यहाँ पे हु इज एट द लॉस? सेलर इज एट द लॉस, बिकॉज सेलर ने क्या एग्री किया है 3 मंथ पहले ही कि मैं 100 रुपए में प्रोडक्ट को बेचूंगा, जबकि बायर के लिए यह प्रॉफिटेबल प्रपोजिशन है, बिकॉज 200 जो कमोडिटी आज 200 रुपए की है वो उसको सिर्फ 100 रुपए में मिल रहे हैं, isn't it? So this way 100 रुपीज गेन में है बायर. तो हम लोग सिर्फ कैश सेटलमेंट, भाई सेलर क्या बोलेगा, इंस्टेड ऑफ delivering this particular water at your place, I will simply make the cash settlement. If the buyer agrees to this, then the cash settlement will take place. अगर buyer बोल रहा है कि नहीं मुझे फिजिकल डिलीवरी ही चाहिए, तो सेलर को इट इज बाउंड फॉर सेलर टू मेक द फिजिकल डिलीवरी. मतलब सेलर इज बाउंड टू मेक द फिजिकल डिलीवरी. ठीक है, सो ये होता है फॉरवर्ड और फ्यूचर में. Whereas options में क्या है, one of the party, as I said, one of the party receives right to execute that contract or no, not to execute the contract. ठीक है, तो ऑप्शन होता है. कॉल ऑप्शन में क्या होता है, राइट टू बाय. ओके, सो पहले केस में क्या था कि बायर और सेलर को वो एग्जीक्यूट करना ही है कॉन्ट्रैक्ट, उनके ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना ही है, मतलब डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, मतलब फिजिकल डिलीवरी हो या ना भी हो, फिर भी आपको वो ऑप्शंस फुलफिल करने, मतलब आपके जो ऑब्लिगेशंस है वो फुलफिल करने ही है. वेरएज जो ये जो रहता है ऑप्शंस जो रहता है उसमें क्या होता है, कॉल ऑप्शन में बायर को राइट रहेगा, बायर विल हैव राइट टू बाय, यू हैव राइट टू बाय. कॉल ऑप्शन मतलब राइट टू बाय. तो मतलब यहाँ पे बायर ने क्या बोला कि अगर मतलब वी विल एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय वाटर एट 100 रुपीज, तो बट आई विल बी हैविंग राइट टू बाय. मैं आपसे कॉल ऑप्शन परचेस कर रहा हूँ. ठीक है, मैं आपसे कॉल ऑप्शन परचेस कर रहा हूँ, राइट टू बाय एक्वायर कर रहा हूँ मैं. ऑब्वियसली ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा. व्हाई वुड सेलर गिव अ राइट टू द बायर? सेलर को कुछ अगर रेम्यूनरेशन मिल रहा है तभी जाके वो बायर को राइट देगा ना. अदरवाइज व्हाई वुड somebody give right to other free of cost? तो यहाँ पे सेलर क्या होगा, सेलर विल टेल, seller will say you pay me some premium in advance, you pay me some premium against which I am giving you right to buy. Okay, so this way both the parties are in turn, in a way they are minimizing the risk associated with the that particular commodity. कैसे? अभी ये बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेनिफिशियल है ही, बिकॉज बायर हैज राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन. मतलब वो अपना ऑब्लिगेशन अगर फुलफिल करना चाहेगा तो करेगा, नहीं करना चाहेगा तो नहीं करेगा. सो इट इज अप टू बायर. ऑलराइट, सो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली ये प्रॉफिटेबल है, बिकॉज सी if the product is available at less price than the contract price, then obviously buyer will not exercise his or her right to buy. ठीक है, सो बायर को अगर दिख रहा है कि 100 रुपए का जो हमने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बनाया था उसकी उस कमोडिटी की आज के डेट में प्राइस कितनी है, तो लेट्स से 80 रुपीज. सो बायर doesn't make sense from the buyer's point of view to buy it at 100 rupees when the same product is available at 80 rupees somewhere else. Yeah, it is available everywhere at 80 rupees. Why would somebody buy it at 100 rupees from the from the seller? जो भी काउंटर पार्टी है उससे परचेज करना डजंट मेक सेंस, isn't it? तो 80 रुपीज है, 100 से कम प्राइस है, तो वो जरूर
वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज नहीं करेगा, या he or she will not exercise the right to buy. That is true when the price is below the contract price. What if price is above the contract price? जो हमने फर्स्ट सिनेरियो देखा था कि जब 100 का प्रोडक्ट का प्राइस 200 रुपीज होता है या 150 रुपीज होता है, तो उस केस में बायर विल डेफिनेटली एक्सरसाइज हिज और हर राइट टू बाय. ओके, तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है बायर के पास जब वो कॉल ऑप्शन परचेस करता है. तो इसका मतलब है सेलर हमेशा इससे सेलर का what seller is doing is seller is trying to mitigate the risk, ठीक है, in some way. तो seller का expectation क्या है कि seller is expecting this particular commodity to depreciate in future. उसका ये मानना है कि ये commodity जाके आगे जाके इसकी प्राइस 100 से भी कम हो सकती है, 100 से भी कम हो सकती है. तो अगर 100 से कम होगी तो सेलर ने अगर इसको राइट दे दिया, बायर को राइट दे दिया, तो बायर इज नॉट गोइंग टू एक्सरसाइज राइट टू बाय. अगर वो 100 की कमोडिटी 80 रुपीज हो रही है तो सेलर को उसको मतलब 80 रुपीज में नहीं देना है. वो मिनिमम कितना प्राइस कोट कर रहा है, 100 रुपीज. सो आपके पास राइट है, आप 100 रुपीज में उसको परचेस कर सकते हो. लेकिन अगर 80 हो गया तो ऑब्वियसली सेलर इज नॉट सपोज टू सेल दैट कमोडिटी एट मतलब 80 रुपीज. उसको 100 में ही ऑप्शन है परचेस करने का. लेकिन इसमें सेलर का क्या फायदा है कि सेलर इज गेटिंग प्रीमियम, ऑप्शन प्रीमियम इसको बोला जाता है. तो जब भी कोई कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन परचेस करता है, तो जो भी सेलर रहेगा या राइटर रहेगा, ऑप्शन का जो राइटर रहेगा जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है किसी को, या जिसने ये राइट किसी और को दिया है, ऐसे राइटर को, ऑप्शन राइटर्स को प्रीमियम मिलता है, अपफ्रंट प्रीमियम मिलता है. स्टार्टिंग में ही जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसी वक्त उनको प्रीमियम मिलेगा. So that way they will be benefiting. अगर उन्होंने whenever the option writer when will option writer benefit? When the contract is not exercised. Because contract कब exercise किया जाएगा, options कब exercise किए जाएंगे, जब वो buyer के favor में है. ऑप्शन बायर के जब फेवर में रहेंगे तब वो एक्सरसाइज किए जाएंगे. तो only when the options are not exercised the option writer will be in the profits. ठीक है. तो ये समझ में आ गया आपको ऑप्शंस का आइडिया क्या है. हेलो, इज दिस क्लियर? हेलो, ओके. सो कॉल ऑप्शन का आइडिया समझ में आ गया आपको सबको? ओके. उसका अपोजिट होता है पुट ऑप्शन. तो पुट ऑप्शन में क्या है, सेलर विल बी हैविंग द राइट टू सेल. Seller will be having not the obligation but the right to sell the commodity at a pre-specified price. तो अभी सेम एग्जांपल ले लेते हैं. कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 100 रुपीज, बट नाउ सेलर हैज एक्वायर्ड राइट टू सेल एट अ स्पेसिफिक प्राइस. ओके, तो ये किसने लिखा कॉन्ट्रैक्ट? बायर ने लिखा कि आई एम गिविंग यू राइट टू सेल, राइट टू सेल दिस पर्टिकुलर कमोडिटी एट अ प्री स्पेसिफाइड प्राइस. ये बायर ने राइट दिया, इसको सेलर को राइट दिया. तो मैं आपसे खरीदने के लिए रेडी हूँ इस पर्टिकुलर प्राइस पे. ठीक है, तो सेलर के पास राइट है. सेलर को अगर लगा एट द एंड ऑफ द ये पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड, कि उसके लिए वो प्रॉफिटेबल है तो वो एक्सरसाइज करेगा कॉन्ट्रैक्ट. अगर नहीं उसको प्रॉफिटेबल है तो वो नहीं करेगा, मतलब नहीं वो एक्सरसाइज करेगा राइट को. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? राइट टू सेल. राइट, तो ये कब एक्सरसाइज होगा? सपोज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 100 and the market price is suppose again 75. Let's say it is below the contract price. Will the seller exercise right to sell? वो अपने राइट को एक्सरसाइज करेगा 100 रुपए में बेचने के. If the market price is 75 rupees and the contract price is 100 rupees. Yes, isn't it? वो एक्सरसाइज करेगा क्योंकि दैट वे द सेलर इज मेकिंग प्रॉफिट्स. बिकॉज अगर वो मार्केट में बेचने जाएगा ये कमोडिटी को, तो उसको कितना प्राइस मिलेगा? मैक्सिमम 75 रुपीज. वेयरएज जो उसने राइट टू सेल एक्वायर किया है, जो बायर ने उसको राइट टू सेल दिया है, वो कितने प्राइस के लिए दिया है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है? 100 रुपए. तो अगर वो
उसी बायर को बेचेगा जिसने उसको राइट टू सेल दिया था, तो उसको कितना प्राइस मिलेगा? 100 रुपए में मिलेगा, मतलब 25 रुपीज एक्स्ट्रा वहां पे उसको मिल रहे हैं कंपेयर टू द मार्केट प्राइस। तो ऑब्वियसली द सेलर विल एक्सरसाइज द राइट टू सेल व्हेन द मार्केट प्राइस इज बिलो द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, या स्ट्राइक प्राइस उसको बोला जाता है। स्ट्राइक प्राइस या मार्केट प्राइस के सॉरी स्ट्राइक प्राइस या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के नीचे जब मार्केट प्राइस रहेगी, तब सेलर विल एक्सरसाइज द राइट टू सेल। How about price greater than market price greater than the contract price? Let's say market price is 140 rupees and the contract price is 100 rupees. Should a seller exercise his or her right to sell the commodity at 100 rupees? Should sellers sell it at 100 rupees or at 140 rupees in the market? 114 market. 140 at a market price, isn't it? It doesn't make sense to exercise the right to sell, क्योंकि मतलब it's not valuable. The contract is worthless now. ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा वैल्यूएबल रहेंगे, वो वर्थलेस भी बन जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्राइस मूवमेंट। यहाँ पे प्राइस मूवमेंट इज नॉट इन फेवर ऑफ सेलर, तो इसीलिए सेलर विल नॉट एक्सरसाइज द राइट टू सेल एट 100 रुपीज, रादर he or she will sell the commodity at in the market at 140 rupees। जो भी मार्केट प्राइस है उसमें बेचना ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो ये और हाँ, यहाँ पे बायर को यहाँ पे ये मिलेगा, बायर को प्रीमियम मिलेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में ही मिलेगा जब कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाएंगे। तो सेलर, व्हेन द सेलर इज एक्वायरिंग राइट टू सेल थ्रू द पुट ऑप्शन, द सेलर इज पेइंग सम अपफ्रंट प्रीमियम टू द बायर। तो बायर इज दैट वे उतना मतलब मिनिमम उसको रेवेन्यू मिलने ही वाला है, प्रीमियम से ऑलरेडी मिल चुका है जब उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। ठीक है, तो उतना तो रेवेन्यू है एंड सो ऑन। अभी एग्जैक्ट उनकी प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह कितना होता है क्या, वो सब हम लोग पे ऑफ चार्ट्स हम लोग जब देखेंगे तो तब पता चलेगा कि हाउ इट एग्जैक्टली वर्क्स। ओके, when are they at a break even point and when they earn profits when they are entering into such type of contracts। ये बेसिक यहाँ पे आइडिया है ऑप्शंस का। और हाँ, ये ऑप्शंस भी इसी पे ट्रेड किए जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस पे ही ट्रेड किए जाते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंजेस पे ही ट्रेड किए जाते हैं। ठीक है, सो ये है। और हाँ, ऑप्शंस जैसे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हम किसी भी कमोडिटी या असेट के बेसिस पे कर सकते हैं, वैसे ही ऑप्शंस का भी होता है। सो वहाँ पे आपको CAPE दिखेगा, तो कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस ऐसे हो रहते हैं। देन स्वैप्स, फोर्थ लास्ट टाइप ऑफ डेरिवेटिव, मतलब मेजर जो डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं उनको बोला जाता है स्वैप्स। तो यहाँ पे स्वैप्स में क्या है, यू आर एक्सचेंजिंग योर आइदर कैश फ्लोज या योर लाइबिलिटीज, दोनों भी हो सकता है। मतलब सपोज मैं किसी फिक्स्ड इनकम अर्निंग सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया हूँ, सपोज मैं इन्वेस्टर ए हूँ और मैंने फिक्स्ड इनकम जैसे मैंने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, और दूसरा कोई इन्वेस्टर है जिसने लेट्स से इक्विटीज में इन्वेस्ट किया, उसने इक्विटी में इन्वेस्ट किया। अभी हमारे दोनों के एक्सपेक्टेशंस अलग अलग थे जब हमने ये असेट्स परचेस किए। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये था एज अ इन्वेस्टर ए, मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि इक्विटी रिटर्न्स आर नॉट गोइंग टू बी सो हाई बिकॉज देयर इज अ pessimism in the market and businesses are not growing so fast, so I expect to get more returns when I'm investing in let's say government bonds। whereas जो दूसरा इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर बी, उसका एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड जो है वो ऑलरेडी बहुत लो है, तो इट डजंट मेक सेंस टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट बॉन्ड, और इसलिए उसने क्या किया था, उसने इक्विटी में इन्वेस्ट किया था। ठीक है, हमारी लाइफ चल रही थी अपने अपने टाइम होराइजन पे। तो लेकिन सडनली हमें एक पॉइंट के बाद रियलाइज हुआ कि वी आर पॉन्डरिंग ओवर वेदर वी हैव मेड द राइट चॉइसेस और नो। सो शुड वी कंटिन्यू टू स्टे इन्वेस्टेड इन अ स्पेसिफिक असेट और शुड वी स्विच, ये हम लोग सोच रहे हैं अभी। फिर हमें ऐसा एक्सपेक्टेशन है हमारा कि बदल गया हमारा एक्सपेक्टेशन अभी। तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है वो अभी इतने लुक्रेटिव नहीं है, equity market is picking up, businesses are picking up, economic growth और economic activities have started increasing। so इसीलिए अभी मैं अपना जो ये है इन्वेस्टमेंट है वो अभी इक्विटी मार्केट में करना चाह रहा हूँ। तो और दूसरा वाला जो पार्टी है, इन्वेस्टर भी, उसको लग रहा है कि अभी इक्विटी मार्केट ऑलरेडी
मतलब अपने पीक पे है ऑलरेडी, उसने लाइफ टाइम हाई अचीव किया है, अब आफ्टर दिस देयर वोंट बी एनी इंक्रीज। सो उसका एक्सपेक्टेशन है कि अभी गवर्नमेंट बॉन्ड्स हमें स्टेबल, कंसिस्टेंट और सुपीरियर रिटर्न्स दे सकते हैं कंपेयर टू इक्विटी, एटलीस्ट फॉर अ टेम्पररी टाइम पीरियड। तो ये उसका एक्सपेक्टेशन है। तो ये टेम्पररी एक्सपेक्टेशंस में चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। लेट्स से नेक्स्ट 3 to 6 मंथ तक हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से विड्रॉ करेंगे, एक असेट क्लास से पैसा विड्रॉ करेंगे, फिर दूसरे में डालेंगे, तो देर विल बी टू मच ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड ऑल दैट। सो इंस्टेड व्हाट वी कैन डू इज, if the counterparty is ready, if the investor B is ready, I can enter into a contract, swap contract, through which I can exchange my stream of इनकम स्ट्रीम्स में ट्रेड कर रहा हूँ उसके साथ। मैं मेरी एक्चुअल इन्वेस्टेड अमाउंट को ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, वो भी बदल नहीं रहा हूँ। मैंने जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसे रखे थे वो उधर ही रहेंगे, उसने जो इक्विटी मार्केट में पैसे इन्वेस्ट किए थे वो भी उधर ही रहेंगे। ओनली थिंग दैट विल चेंज इज I will get the returns from the equity market, and the second investor will get the returns from the गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो स्ट्रीम ऑफ इनकम, फ्यूचर में जो मिलने वाले इनकम है उनको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, या लाइबिलिटीज को भी ट्रेड कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ असेट्स वी कैन थिंक अबाउट लोन्स। ये लोन, तो मैंने लोन लिया था फिक्स्ड इंटरेस्ट वाला, और सेकंड पार्टी ने लिया था फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट वाला लोन। तो उसको मतलब उसका एक्सपेक्टेशन ये था कि फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट से मुझे कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बिकॉज गवर्नमेंट इज रिड्यूसिंग द बैंक रेट, रेपो रेट एंड ऑल दैट, और उसकी वजह से उसको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ऐसा उसका एक्सपेक्टेशन था, इसलिए उसने फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट पे लोन लिया था। मेरा ये मानना था कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग, एडिशनल कॉस्ट ऑफ बोरिंग विल इंक्रीज फॉर बैंक्स इन द नियर फ्यूचर, और इसी के वजह से जो फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट पे रहने वाला जो इंटरेस्ट रहेगा वो ज्यादा रहेगा कंपेयर टू द फिक्स्ड इंटरेस्ट, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन था। तो इसलिए मैंने फिक्स्ड इंटरेस्ट वाला लोन लिया और उसने फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट वाला। फिर हमें कुछ पॉइंट के बाद लगता है कि हमें अभी स्वैप्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहिए, बिकॉज आई एक्सपेक्ट इंटरेस्ट रेट्स टू गो डाउन, और इसीलिए जो फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट वाले लोन रहेंगे उनको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वरना जो सेकंड पार्टी है उसका एक्सपेक्टेशन है कि इट इज डिफरेंट। तो ऐसे हमारे डिफरेंसेस इन एक्सपेक्टेशंस होते हैं, उनके वजह से हम लोग ऐसे स्वैप्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, whereby I'll be trading my liability with the other party in return for his or her liability। तो मैं उनकी इंटरेस्ट पेमेंट का जो लाइबिलिटी है वो मैं ले रहा हूँ उसकी जिम्मेदारी, whereas माई इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट पेमेंट की जो लाइबिलिटी है वो दूसरा पार्टी ये कर रहा है, एक्वायर कर रहा है। सो दिस वे वी आर ट्रेडिंग द लाइबिलिटीज। तो कैश फ्लोज हो, कैश इनफ्लोज हो या कैश आउटफ्लोज हो, उनको अगर ट्रेड किया जा रहा है उसको आप बोल सकते हो स्वैप्स। तो ये अगेन ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ये अगेन स्टैंडर्डाइज नहीं होते, ये पर्सन टू पर्सन हम लोग एंटर करते हैं, जैसे हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में देखा था। तो इसीलिए ये एक्सचेंजेस पे नहीं ट्रेड किए जाते। यू विल हैव टू सीक द इंटरेस्टेड काउंटर पार्टी एंड देन यू कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद देम। ठीक है, तो ये है। जनरली इन्वेस्टर बैंकर्स वगैरह होते हैं, वो एज अ मिडल मैन यहाँ पे काम करते हैं, एंड दे आल्सो कैरी एडिशनल रिस्क एसोसिएटेड विद देम, जैसे कि एक्सचेंज रेट रिलेटेड रिस्क वगैरह हो सकते हैं। समटाइम्स वी कैन ट्रेड विद द डिफरेंट करेंसीज आल्सो, जैसे माय लोन इज इन लेट्स से रुपीज, एंड सेकंड इन्वेस्टर्स लोन इज इन डॉलर्स। तो एक्सचेंज रेट रिलेटेड जब जब हमने अपनी कैश इनफ्लोज को या कैश आउटफ्लोज को ट्रेड किया, इन एडिशन टू द इंटरेस्ट रेट रिलेटेड रिस्क एंड ऑल दैट, आई एम ऑल्सो एक्सपोजिंग माई सेल्फ टू एक्सचेंज रेट रिलेटेड रिस्क। अगर एक्सचेंज रेट मेरे फेवर में नहीं चेंज हो रहा है तो मेरा जो लाइबिलिटी है वो और भी बढ़ सकता है। ठीक है, कुछ एडिशनल रिस्क भी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं व्हेन वी एंटर, मतलब लेना पड़ सकता है हमें व्हेन वी एंटर इनटू सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्वैप्स। ठीक है, तो ये बेसिक टाइप्स हैं इनके, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस एंड स्वैप्स, ये मेजर टाइप्स में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लासिफाई किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? No, sir. ओके, ग्रेट। तो यहाँ पे ग्रुप्स ऑफ डेरिवेटिव्स क्या है यहाँ पे, कि एक होता है ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स, मतलब जो प्राइवेटली नेगोशिएटेड होते हैं, जो एक्सचेंजेस के थ्रू नेगोशिएट नहीं होते हैं, उनको आप बोलते हो ओवर द काउंटर डेरिवेटिव या कॉन्ट्रैक्ट्स।
और ओटीसी मार्केट इसको बोला जाता है। जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा या स्वैप्स में हमने देखा, वी वर एंटरिंग इनटू दीज कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट हैविंग इंटरमीडिएशन फ्रॉम द एक्सचेंजेस। ठीक है, तो ऐसे जो ये रहते हैं उसको ओटीसी मार्केट, ओवर द काउंटर मार्केट्स बोला जाता है। प्रोडक्ट्स सच एज स्वैप्स, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स एंड एक्सोटिक ऑप्शंस आर ऑलमोस्ट ऑलवेज ट्रेडेड इन दिस वे, मतलब डायरेक्टली प्राइवेटली निगोशिएटेड रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये है। देन these OTC market comprises of banks and highly sophisticated parties such as hedge funds and all that. So here the private contracts will be मतलब will be entered into. Okay. तो ये है। Then this is a largely unregulated market with respect to the disclosure of information between the parties. क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज का ये नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, सभी जो इंफॉर्मेशन के रिलेटेड डिस्क्लोजर नॉर्म्स है उनके, वो यहाँ पे नहीं आते, और इसीलिए यू आर बियरिंग एडिशनल रिस्क व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन सच मार्केट्स, ओटीसी मार्केट्स। दूसरा जो टाइप का मार्केट है उसको आप बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, ईटीडी इसको बोला जा सकता है। सो दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर prepared, standardized, and norms related to these are formulated by exchanges, stock exchanges. Okay? तो इसको exchange traded derivative contracts बोला जाता है. And in all the contracts, the exchanges act as an intermediary to all the related transactions, takes the initial margin from both the sides of the trade to act as a guarantee. मतलब when you are entering into such type of contracts, तो एक्सचेंज आपसे इनिशियल एक अपफ्रंट मार्जिन ये करेगा। ये मार्जिन क्यों जरूरी है? बिकॉज आपको अगर डेली बेसिस पे सर्टन लॉस हो रहा है, तो वहां से उस मार्जिन में से वो पैसा कट किया जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा। सो दिस इज द रीजन व्हाई दे आस्क यू टू पे सम अपफ्रंट मार्जिन, इनिशियल मार्जिन व्हेन यू आर डीलिंग विद सच कॉन्ट्रैक्ट। ये तो ये है। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए। कोरियन एक्सचेंज है, मतलब मेजर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के हिसाब से देखा जाए तो दिस वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज। देन यूरेक्स है, देन सीएमई है, शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज वगैरह। तो दीज आर सम ऑफ द लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंजेस इन द वर्ल्ड। तो ये है। Now, what are the risks that we face when we are entering into such type of derivative contracts? Uh, these are these are extremely risky assets, yeah, instruments, one can say, because there are various types of risk that we face when we enter into such contracts. क्या है, कौन कौन से रिस्क है? तो काउंटर पार्टी रिस्क, जैसे मैंने कहा, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक है लीगल रिस्क, दूसरा है डिफॉल्ट रिस्क, तीसरा है सेटलमेंट रिस्क। तो ये the counterparty will not fulfill their obligations. This is the basic crux of counterparty risk. पर उसको अलग अलग नाम से भी हम लोग डील कर सकते हैं। लीगल रिस्क कब होगा? when you did not enter into a contract properly, so maybe कॉन्ट्रैक्ट आपने सही से फॉर्म नहीं किया, तो यहाँ पे लीगल रिस्क है। यू कैन नॉट डिफेंड योर पोजीशन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो अगर आपने सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया, तो ये एक लीगल रिस्क है। डिफॉल्ट रिस्क क्या है कि the counterparty is not able to honor their obligations, due to various reasons. Let's say they have taken excessive debt and they are not able to pay the interest payments and all that. So in such cases, the default is taking place. It could be a willful default or not willful default. ऐसा मतलब innocently they are defaulting. They are मतलब they did not want to default in the first place, but due to the circumstances they are not able to honor their obligations. तो दोनों तरीके के डिफॉल्ट हो सकते हैं। विलफुल डिफॉल्ट भी हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डेलिबरेटली डिफॉल्ट करते हैं, मतलब इवन व्हेन दे आर एबल टू पे, दे आर नॉट पेइंग द मनी बैक। ऐसे विलफुल डिफॉल्टर्स भी होते हैं एंड देन दे फ्ली समवेयर एल्स, isn't it? So ये ऐसे भी रिस्क होते हैं। Then there is a settlement risk. The contracts cannot be settled due to various रिस्क में देखने को मिलता है। तो वेरियस स्टेजेस है। कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करते वक्त अगर कुछ प्रॉब्लम है तो लीगल रिस्क। देन व्हाट आर दे सेइंग, डिफॉल्ट ऑन द पेमेंट डे, देन इट इज अ सेटलमेंट रिस्क।
मतलब पेमेंट डे पे ही आपने वो ये कर दिया, एक्सेप्ट करना कर नहीं सकते ऐसा बोल दिया, तो ऐसा है तो उसको सेटलमेंट रिस्क वगैरह बोला जाता है, श्योर, ठीक है। तो ये एक टाइप का रिस्क है। देन देयर इज अ प्राइस रिस्क, प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग कमोडिटी। सी, द कॉन्ट्रैक्ट इज एज मच वैल्यूएबल एज द कमोडिटी। अगर कमोडिटी की प्राइस ही फ्लक्चुएट हो रही है या बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट हो रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट भी वर्थलेस बन सकता है। तो इसलिए प्राइस रिस्क भी होती है जब आप डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो। तो एंड समटाइम्स द प्राइसिंग मैकेनिज्म में नॉट बी वेरी एफिशिएंट, तो आप टू बिगिन विथ ही आपने प्राइस इनएफिशिएंटली सेट किया, या यू नो रॉन्ग प्राइस आपने सेट किया, एंड दैट वे इट कैन बी मिसलीडिंग टू द पार्टिसिपेंट्स इन द कॉन्ट्रैक्ट। ये भी है, प्राइसिंग के रिलेटेड भी रिस्क भी हो सकते हैं यहाँ पे। Two schools of thought. One, people say that markets are always efficient and there won't be any inefficiencies in the market. Prices will convey all the information related to stock. This is one school of thought. And second one is that prices markets are inefficient. There is still a lot of uh, inefficiencies या ineffectiveness in the pricing mechanism, ऐसा है। क्योंकि प्राइजेस हमेशा सब इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं करता है। देर आर some price movements which cannot be justified given the fundamentals of certain stocks. So there are companies which have clean energy या green energy name, green energy words in their company name, and their share prices are increasing a lot. Multiple times they are increasing even when they are not doing any actual business. If you look at their balance sheets, then they don't have even a sufficient business. Still, their stock price is increasing. So there are inefficiencies, there are price manipulation contracts. So it's highly risky business. Then agency risk is there. What is agency risk? This is also known as principal agent problem, where you know the owner of the business and the employees of the business have their own considerations in mind, and they act accordingly. So let's say employees, yeah, managers of the company may not necessarily buy the same argument which their owners, yeah, equity shareholders are having. Let's say equity shareholders are concerned about the growth of the company, or they want to expand the business, whereas मैनेजर्स का ये कुछ अलग हो सकता है, ऑब्जेक्टिव अलग हो सकता है। जो ओनर्स रहते हैं उनका जनरली ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रिंसिपल, इसको प्रिंसिपल बोला जाता है, प्रिंसिपल एजेंट। सो एजेंट इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो हियर प्रिंसिपल मीन्स बिजनेस ओनर्स एंड एजेंट मीन्स लेट्स से मैनेजर्स या employees of the company. So suppose principal have profit maximization objective in mind. Business owners have profit maximization objective in mind, whereas managers may go for sales maximization, because their remuneration structure is designed in such a way that if the company is able to sell more, the managers will get remunerated accordingly. So यहाँ पे inconsistencies है with respect to the objectives of two important parties of that, two important stakeholders of this organization, and hence they you know they can try to pursue their own objectives, and which might be conflicting in nature. So organization is going nowhere when the two important parties are having different thoughts about the growth of that organization. तो ये agency risk भी होती है कि all the employees, yeah, all the important stakeholders may not act in the same manner which is desired. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए, बैरिंग्स बैंक का एक एग्जांपल दिया है, और यहाँ पे उन्होंने डेरिवेटिव ट्रेडिंग में डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना स्टार्ट किया था, एंड देयर वाज वन ऑफ द ट्रेडर हु वाज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक, और उसका नाम था निक लीसन। तो निक लीसन वाज ऑलरेडी नोन एज, और बहुत ज्यादा स्पेकुलेट कर रहा था वो,
और उसने इतना ज्यादा मतलब उसकी एपेटाइट इतनी बढ़ गई, रिस्क एपेटाइट एक पॉइंट के बाद, तो उसने बहुत सारा पैसा उस बैंक का डेरिवेटिव सेगमेंट में लगाया, स्पेकुलेशन में लगाया, एंड अल्टीमेटली दोज बेट्स डिड नॉट डू वेल, एंड देन बैंक हैड टू सफर अ लॉट, उनको ऑलमोस्ट बैंकरप्सी ही फाइल करनी पड़ गई। तो ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं, बहुत बहुत बार देखने को मिलते हैं। So this is also one of the risks that people who are indulging into such type of contracts are facing, agency related risk. Okay? I think ये repeat हुआ है, ये पेज रिपीट हुआ है। तो he siphoned off more money to the derivative market, जितना डिजायर्ड था। बैंक का एक्सपोजर कितना होना चाहिए रिस्की एसेट्स में, एक सर्टेन परसेंटेज तक होना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी यू आर यू आर यूजिंग समबडी एल्सेस मनी, जो डिपॉजिटर्स है उनके पैसे पे के ऊपर आप काम कर रहे हो। और वो अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव रिस्क ले रहे हैं, यहाँ पे जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनका क्या कहना है कि वी नीड स्टेबल रिटर्न्स, वी नीड नॉट वेरी हाई रिटर्न्स, मॉडरेट रिटर्न, लो रिटर्न हमें मिलेंगे तो चलेंगे, लेकिन पैसा सेफ होना चाहिए, लिक्विड एसेट्स में आप डालो उसको। ये प्रिंसिपल यहाँ पे जो बैंक के जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनका ये है कहना है, या मैनेजमेंट का वही कहना रहेगा। बट जो एक्चुअल एम्प्लॉयज होंगे वो शायद कॉन्ट्राडिक्टरी काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो निक लीसन had fled Singapore and was arrested later, and he was sentenced to prison. But the bank went bankrupt because of these things. ये तो ऐसा भी हो सकता है। ऐसे स्कैम्स वगैरह की वजह से भी एडिशनल रिस्क यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने इंटरनल ऑडिट और ये सब बहुत स्ट्रिक्ट किया, ऑडिटिंग वगैरह। बट दीज वर सम ऑफ द इंस्टेंसेस which was having highly leveraged bets, बहुत सारा borrowed funds के ऊपर आपने। और ऐसा नहीं कि दिस इज अ थिंग ऑफ पास्ट, इवन रिसेंटली बहुत बहुत बड़े बड़े हेज फंड्स वगैरह जो होते हैं वो भी ऐसे एक्सेसिव रिस्क रहते हैं, बैंकर बन जाते हैं, बहुत सारे पैसे, लोगों का पैसा डूब जाता है। और इट्स नॉट ओनली अबाउट डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप कंट्री में भी रिसेंट इंस्टेंसेस आपको बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे भी इश्यूज यहाँ पे हो सकते हैं। And then there is systematic risk. Systematic risk is basically about market related risk. We will talk about this and the subsequent topic in the next lecture. कुछ डाउट क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। No, sir. नो डाउट, ओके ठीक है, ग्रेट। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।